Hello everyone, welcome back to my classes. So yeah, I told you last time कि I would be bringing one video on classification of animal tissues as well, and I'm doing the same right now. ठीक है, तो animal tissues की classification को एक बार ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, just as a pre-class video only. Once again, I'll explain again that ये sufficient नहीं है, ठीक है, it's not sufficient. Like अगर आप सोचो कि this is more than enough, okay, to study animal tissues, no, this video is just a pre-class video to understand the gross concept. Fine, तो चलिए let's understand something about animal tissues. मेजर 4 टाइप की क्लासिफिकेशंस आती हैं एनिमल टिश्यूज में. कौन कौन सी? The first tissue is epithelial tissues. I'll quickly revise. Tissues are made up of cells. Cells are grouped together to form tissues. ठीक है जी. एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं ड्यू टू देयर फंक्शनल डिफरेंसेस, तो इसीलिए उनके बॉडी डिजाइन भी डिफरेंट होता है. Nervous tissue is the third category, and the last one is connective tissue. NCERT में अगर आप order study करेंगे तो first of all it's given epithelial tissue, then it's given connective tissue I guess, and then it's muscular, then it's nervous. ठीक है. So I just tell you that what actually these tissues are और इनको हमने 4 parts में क्यों categorize किया है. Details के लिए you need to refer your NCERT. ठीक है जी. तो चलिए बात करते हैं. अब देखिए जो epithelial tissues हैं यार, they are the tissues which are lining the boundaries, जो बाउंड्री को कवर कर रहे हैं वो कौन से टिश्यूज हैं? एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, जैसे हमारी स्किन है, स्किन इज आवर आउटर ऑर्गन, ये बाउंड्री है हमारी उसकी, सो दिस इज अ epithelial tissue. Similarly हमारे organ के बाहर कोई boundary है, so that is also forming epithelial tissues. So इस तरीके से आप ये समझिएगा कि epithelial tissues are those tissues which are forming anywhere the outline of anything in our body, and since they are the outermost, so their basic functions, the basic function which they perform comes out to be the protection. This is their basic function. They have other different functions as well. ठीक है, लेकिन again just to have rough idea about what this tissue is, you can remember these points. ठीक है जी. Moving next, muscular tissues. हम सबको पता है that how strong we are. ठीक है, हमारे muscles है body में जो हमें movement के लिए help करते हैं. So इनका जो basic function है वो क्या रहेगा? Movement, because obviously the muscles are responsible for movement in our body. Whereas ये मिलते कहाँ पे? They are found in all places where movement is taking place. ठीक है, found in all places जहां पे क्या हो रही है? जहां पे हो रही है movement. राइट. सो आप अगर बुक में स्टडी करेंगे तो 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज गिवन है, दैट इज स्मूथ, दैट इज स्केलेटल एंड दैट इज कार्डियक. तो स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अंदर बॉडी के हमारे अपने आप फंक्शन कर रहे हैं, अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, एंड वी कैन नॉट इवन नोटिस दैट मूवमेंट. स्केलेटल टिश्यूज वो है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मूविंग माय हैंड राइट नाउ, सो दिस इज माय स्केलेटल मूवमेंट, मैं अपनी मर्जी से कर पा रही हूँ. ठीक है, आई एम वॉकिंग, दिस इज माय स्केलेटल मूवमेंट. सिमिलरली द थर्ड वन इज कार्डियक मसल, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ आवर हार्ट जो कंटिन्यूअसली ब्लड पंप कर रहा है, सो दैट इज द कार्डियक मसल. इस तरीके से मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड किया गया है आपकी बुक में. ठीक है जी. नेक्स्ट इज द नर्वस टिश्यू. अगर नर्वस टिश्यू की बात करें, सो नर्वस टिश्यू इज नथिंग बट द टिश्यू व्हिच फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल कहां से आता है? यहां से आता है. और ये सब किसके बना हुआ है? ऑल दिस इज फॉर्म्ड ऑफ अ सेल नोन एज न्यूरॉन. All the neurons combine together to form nervous tissue. ठीक है जी. अब nervous tissue का काम क्या है? What is the function of nervous tissue? Nervous tissue का काम है control, बॉडी में कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, बॉडी में कोऑर्डिनेशन करना. ठीक है, टू कंट्रोल एंड टू कोऑर्डिनेट. सो दिस इज nervous tissue, to control and to coordinate.
देन टॉकिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्या पता लग रहा है, एनीथिंग दैट कनेक्ट्स, एनीथिंग दैट कनेक्ट्स द टू थिंग्स। ठीक है जी, तो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू को बुक में पढ़ेंगे तो काफी सारी डिटेल दी हुई है, जैसे कि ब्लड, ब्लड पहला दिया हुआ है बिकॉज इट्स अ टिश्यू विच इज कनेक्टिंग द होल बॉडी, इट इज जस्ट कि वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको हम कह देते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज जो अंदर के ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो स्किन से बाहर वाली स्किन का कनेक्शन अंदर वाली चीजों से कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एनीथिंग दैट इज फॉर्मिंग अ कनेक्शन, एनीथिंग that is forming a connection is coming under the categorization of connective tissue, right? So this was the major classification of animal tissues. Again, there is lots and lots of other things to study in this animal tissue. This is just a gist and a pre-class video for you to have a healthy conceptual mind in terms of animal tissues. ठीक है जी, thank you so much, keep following me for more videos. Thank you.